بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، ایک یرکان کے بارے میں اور ایک ہیپاٹائٹس کے بارے میں۔ اور ہیپاٹائٹس والے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں کالے یرکان کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، تو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کالے یرکان کے بارے میں۔ اچھا، یرکان پہ بات کرنے سے پہلے یا کالے یرکان پہ بات کرنے سے پہلے ذرا بات ہو جائے کہ جگر جو ہمارے جسم میں یہ ایک عضو ہے جس کو جگر کہتے ہیں، لیور کہتے ہیں، اس کے کام کیا ہیں؟ اچھا، جگر کے بہت زیادہ کام ہیں، بہت سارے کام ہیں جس میں یہ باڈی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں اس کا ایک کام یہ ہے کہ یہ جسم میں جتنی بھی چیزیں چل رہی ہے نا، جتنے بھی عمل چل رہے ہیں، میٹابولزم جس کو کہتے ہیں، کسی چیز کی توڑ پھوڑ، مطلب کیمیکلز ہو گئے، ہارمونس ہو گئے، انزائمس ہو گئے، اس کی جو توڑ پھوڑ کا عمل ہے، اس سے جو چیزیں بنتی ہیں، کچھ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، کچھ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، تو یہ اکثر جو نظام ہے میٹابولزم کا یہ جگر میں چل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اہم کام اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے نظام میں ہیلپ کرتا ہے، بائل پروڈیوس کرتا ہے، بائل بناتا ہے، اور اس سے ہمارے نظام کے جو کچھ عمل ہیں اس میں ہیلپ ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جسم میں جو ہمارے پروٹینز، فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس، اس کی بھی توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، اس سے ان صورتوں میں لاتا ہے جس سے ہمارا جسم ان کو یوز کر سکے، ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح گلوکوز کو سٹور کرتا ہے گلائکوجن کی شکل میں۔ اس کے علاوہ وائٹامنس کو سٹور کرتا ہے، جس طرح وائٹامن B12 ہے، منرلز کو سٹور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو خون کا جمنے کا سسٹم ہے، کلاٹنگ فیکٹرز کہتے ہیں، وہ بناتا ہے۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول وغیرہ اس کی میٹابولزم کرتا ہے، اس کو جسم میں کم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے مدافعاتی نظام میں اس کا بہت رول ہے۔ اور یہ کام کس طرح کرتا ہے؟ یہ اس طرح کرتا ہے کہ جس طرح ہمارا جسم خون پورے جسم میں سے گزر کے نا یہ واپس جاتا ہے جگر سے ہوتے ہوئے پھر دل میں جاتا ہے، تو وہ خون جو ہے نا جگر میں ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے، تو خون کو صاف کر دیتا ہے، اور اس میں سے جو اپنے ضرورت کی چیزیں وہ لے لیتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے۔ اس میں جو چیزیں جسم سے نکالنے والی ہوتی ہیں اس کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، ان کو جسم سے نکال دیتا ہے۔ مطلب مختصراً یہ کہ جگر کے بہت ہی زیادہ کام ہیں جو کہ یہاں پہ سب مینشن کرنا اور آسان الفاظ میں مینشن کرنا بذات خود ایک مشکل کام ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ کالا یرکان کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں جو ہے نا یہ جگر جب صحت مند صورت میں ہو تو یہ اس طرح نظر آتا ہے، اور کالا یرکان جو ہوتا ہے نا اس میں یہ جگر سکڑ جاتا ہے، اس طرح نظر آتا ہے۔ تو جب جگر سکڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب جو اس کے کام ہے، جو یہ نارمل فنکشن کر رہا ہے، تو اس میں کمی آ جاتی ہے، اور جب اس میں کمی آ جاتی ہے تو بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کالے یرکان ہوتا کیوں ہے؟ جو بہت بڑی وجہ جو ہمارے ملک میں دیکھی گئی ہے کالے یرکان یا جو جگر سکڑ جاتا ہے، وہ ایک تو ہیپاٹائٹس C وائرس ہے، دوسرے نمبر پہ ہیپاٹائٹس B وائرس ہے۔ یہ 2 وائرسز ہیں جو کہ بہت زیادہ کامن ہے جو کالے یرکان کی وجوہات میں ہمارے ملک میں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو جگر کو سکڑا دیتی ہیں، جس طرح شراب نوشی، جسم میں فیٹس کا بہت زیادہ ہو جانا، مطلب جگر کے اوپر چربی بہت زیادہ چڑھ جانا، جو خاص طور پہ شوگر کے مریض ہیں یا موٹاپے کے مریض ہیں ان میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دل کے مریض ہیں، دل فیل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیچھے جگر پہ زور آتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ جگر سکڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں کچھ میٹلز کا بڑھ جانا، جس طرح فولاد کا بڑھ جانا، کاپر کا بڑھ جانا، اس سے بھی جگر سکڑ سکتا ہے۔ تو یہ تو خیر ریئر قسم کی بہت کم لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، لیکن زیادہ کامن جو ہے نا ہیپاٹائٹس C ہے اور ہیپاٹائٹس B وائرسز ہیں۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ اگر ہم وجوہات کو دیکھیں تو ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C جو ہے نا یہ بہت ساری وجوہات سے ہو سکتا ہے، جیسے متاثرہ خون لگنے سے، متاثرہ سرنج کے استعمال سے، کسی ہیپاٹائٹس B یا ہیپاٹائٹس C کے بندے کا سرنج آپ استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ
रेजर से लग सकता है, मतलब मुतासर बंदे का रेजर था, वो आपने इस्तेमाल कर लिया और आपको भी कट लग गया और उससे आपको ये हो सकता है। तो मुतासरा सिरिंज, नीडल्स, ब्लेड्स वो इस्तेमाल करने से इस तरह ख़वातीन जो ये नाक और कान में जो सुराख करवाती है उस वालियाँ पहनने के लिए, अगर वो नीडल भी मुतासर हो तो उससे भी हो सकता है। तो इसलिए ख़वातीन खास तौर पे ये देखें कि बेटियों को जब वो ज़ेवरात के लिए सुराख करवाती है तो नई नीडल इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये जो है ना अज़दवाजी ताल्लुकात में भी होता है। शौहर अगर मुतासर हो हेपेटाइटिस बी से उसे बीवी को लग सकता है, अगर बीवी मुतासर हो तो शौहर को लग सकता है। इस तरह जो है ना गैर कुदरती जिनसी अफ़ाल से भी होता है, तो जिनसी बेराहरवी होती है, उसमें भी एक बंदे से दूसरे बंदे में ये चीज़ फैल सकती है। बल्कि 10 में तो ज़्यादा इसी वजह से फैली है कि जो जिनसी बेराहरवी है उसकी वजह से। अच्छा, ये हो गया कि ये वायरसेस कैसे फैलते हैं। इसके अलावा जो मैंने दूसरे ज़िक्र किया था कि शराब नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा, एक दफ़ा जब काले अरकान हो जाए, ये जो जिगर सिकुड़ जाना जिसको सिरोसिस कहते हैं, ये एकदम नहीं होता। इसमें साल लगते हैं। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी तशखीस हो गया या हेपेटाइटिस सी, तो अब परेशान ना हो कि जी मुझे तो काले अरकान है और बस जिगर ख़त्म हो गया। इसमें साल लगते हैं जिगर सिकुड़ने में अगर इलाज ना किया जाए। तो अगर आप काला यरकान तशखीस हो गया है, जिस तरह हेपेटाइटिस बी और सी तशखीस हो गया, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको सिरोसिस भी हो चुका है। तो आप तसल्ली रखें, अपने डॉक्टर से मिलें और वो जिगर का अल्ट्रासाउंड करेंगे, बाकी टेस्ट करेंगे और आपको बता देंगे कि आपका यरकान किस स्टेज पे है और इलाज शुरू कर देंगे उसके मुताबिक। अच्छा, एक तो ये है कि आपने काले यरकान, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज कर लिया और आपका जिगर वो ख़त्म हो गया वायरसेस, तो इससे जिगर को अब नुकसान इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। कुछ लोगों में दोबारा भी हो जाता है हेपेटाइटिस, तो फिर उसका दोबारा इलाज करना पड़ता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप रेगुलरली फॉलो अप करें, अपने डॉक्टर से मिलते रहा करें और टेस्ट करवाते रहा करें। आपका डॉक्टर आपको समझा देगा कि कितने अरसे बाद टेस्ट ज़रूरी है। हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर एक दफ़ा सिरोसिस हो जाए, काला यरकान हो जाए, तो फिर क्या-क्या मसले मसाइल होते हैं? इसमें बहुत सारे मसले होते हैं। जिगर का काम चूँकि मुतासर हो गया, तो बहुत सारे चीज़ें जो जिगर बनाता है वो नहीं बनेंगी, प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, ग्लूकोज़ की स्टोरेज मुश्किल हो जाएगी। इस तरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जो मेटाबॉलिज़्म हो रही थी, वो मुतासर हो जाती है। इस तरह जो खून जमने के प्रोटीन्स बन रहे थे, वो मुतासर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ना निज़ाम मुतासर हो जाता है। इसके अलावा जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम मुतासर हो जाता है और पेट में पानी पड़ जाता है, जिस्म के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती, बाज़ लोगों में यरकान भी शुरू हो जाते हैं, आँखें पीली पड़ जाती हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो खून की उल्टियाँ भी कुछ लोगों में शुरू हो जाती हैं। खून जमना ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा-सा कट लगता है, तो खून फिर मुश्किल से जमता है। अच्छा, टेस्ट कौन से करते हैं? टेस्ट इसमें डिपेंड करता है किस स्टेज पे है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी तशख़ीस हो गया है तो फिर उसके लिए टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। इसके अलावा और वजूहात देखते हैं, अगर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर और वजूहात देखते हैं किस वजह से जिगर को नुकसान पहुँचा है। आयरन लेवल्स करते हैं, कॉपर लेवल्स करते हैं। कुछ लोगों में चूँकि जिगर पे चर्बी की वजह से होता है तो उसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं। इसके अलावा जिगर पे देखते हैं कि उसमें जो फाइब्रोसिस है, जो उसकी सुखड़ाहट का अमल है, वो किस स्टेज पे है। फाइब्रोसिस देखते हैं, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए फाइब्रो स्कैन करते हैं या फिर खून में कुछ फाइबर्स की मिकदार देखते हैं। तो उससे अंदाज़ा करते हैं कि आपका जिगर का जो सुखड़ाहट है वो किस स्टेज पे है। तो उसके मुताबिक फिर इलाज किया जाता है। कुछ लोगों में फिर बायोप्सी भी की जाती है। जिगर का एक सुई डाल के ना टुकड़ा लिया जाता है और उसको फिर टेस्ट किया जाता है कि उसमें फाइब्रोसिस किस स्टेज पे है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? जिस तरह पहले ज़िक्र हो चुका है कि काले अरकान मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए जिगर की सिकुड़ाहट जो फाइनल स्टेजेस पे पहुंच जाता है। तो इसमें हर मरहले पे डिफरेंट ट्रीटमेंट है। एक तो उसकी ट्रीटमेंट है जो कि वजह है, और जिस तरह शुरू में ज़िक्र हो चुका है कि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी ये कॉमन वजूहात हैं, तो उनको टेस्ट किया जाता है, उनको कंफर्म किया जाता है कि जी वाकई हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। फिर पीसीआर के ज़रिए से वायरस की तादाद मालूम की जाती है, फिर
लिवर फंक्शन टेस्ट में ALT देखा जाता है कि वो एक ख़ास मिकदार से ऊपर है, और अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि जिगर को नुकसान तो अभी नहीं पहुंचा। तो ये सारे टेस्ट करके फिर डॉक्टर इस नतीजे पहुंचता है कि अभी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज मुमकिन है। फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाती है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके अलावा जो अल्कोहलिक्स हैं, शराबनोश अफराद हैं, उनको कहा जाता है कि आप शराब नोशी तर्क कर दें। इसके अलावा अगर सिरोसिस लास्ट स्टेज पे हो तो उनमें फिर मज़ीद टेस्ट किए जाते हैं, एंडोस्कोपी की जाती है। उसमें देखा जाता है जो खुराक की नाली है उसमें खून की रगें फूली तो नहीं है, क्योंकि उससे खून वाली उल्टी होने का अंदेशा होता है। तो खून के टेस्ट हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, एंडोस्कोपी हो सकती है, कुछ लोगों में जिगर की बायोप्सी हो सकती है। बाज़ लोग जिनमें पेट में पानी पड़ जाता है उनका पेट से पानी निकाल के टेस्ट किया जाता है। ठीक है। और अगर हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव है और कोई शराब नोशी करता है तो उनको दिलवसा कोशिश करनी चाहिए कि शराब नोशी तर्क कर दें। इसके अलावा जिन अफराद के जिगर की चर्बी होती है वो उनकी जिगर की चर्बी कम करने के लिए इलाज किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों में आयरन ज़्यादा हो या कॉपर ज़्यादा हो तो उसके लिए फिर इलाज किए जाते हैं। तो हर वजह जो काले अरकान का सबब बन सकती है, उस वजह का इलाज नंबर 1 ये होता है, और दूसरा इलाज फिर वो होता है कि जिसमें मसाइल शुरू हो गए हैं, जिस तरह पेट में पानी पड़ गया है उसके लिए इलाज किया जाता है। जिस तरह खुराक की नाली में खून की रगें फूली हुई है और उसकी वजह से खून की उल्टी हुई है, तो उसका इलाज किया जाता है। उन लोगों को बेंडिंग की जाती है, उन लोगों को एक तरह से बंद किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के जहन पे नुकसान पहुंच जाता है, इनकैफ हम कहते हैं, इनकैफ्लोपैथी, तो वो होता उस वक्त है जिस वक्त जिगर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो जिस्म में जितने टॉक्सिक जहरीले मादे हैं वो खून में शामिल हो रहे होते हैं और वो जहन पर असर डालते हैं। तो फिर उसके लिए इलाज किया जाता है। कब्ज़ को नहीं होने दिया जाता, क्योंकि कब्ज़ भी जब इन मरीजों को हो जाती है तो उससे भी बेहोशी की कैफियत आ जाती है। किसी को खून की उल्टी हो जाए तो फिर खून की उल्टी का इमरजेंसी इलाज होता है, उनको खून दिया जाता है, सफ़ेद खून दिया जाता है, उनको ड्रिप लगाई जाती है और इमरजेंसी में एंडोस्कोपी करके उनकी जो फूली हुई रगें उनको बंद किया जाता है। जिनमें पेट में पानी है और उनको पानी में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, फिर उस इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है पेट का पानी निकाल के, एंटीबायोटिक दे के और दूसरे मुख्तलिफ चीज़ें करके। इसके अलावा जिन लोगों में खून जमने का मसला होता है, ब्लीडिंग होती है नाक से या बड़े पेशाब के रास्ते से, तो उनका फिर जो क्लॉटिंग का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए इमरजेंसी में सफ़ेद खून लगाया जाता है। और अल्टीमेटली यही है कि अगर सारी चीज़ें फेल हो जाते हैं तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो जिगर की पेवंदकारी वो की जाती है। तो ये जी है काले अरकान के बारे में चंद बातें। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ कुछ आ गई होंगी। चीज़ें चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने कोशिश की है कि उसको मुख्तसरन जितना हो सकता है वो बयान करूँ और आसान से आसान अल्फाज में बयान करूँ। अच्छा, इसका बचाव कैसे है? बचाव ज़ाहिर बात है कि आपने वायरस से बचना है, हेपेटाइटिस बी वायरस से बचना है, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये सबसे कॉमन वजूहात हैं। मुतासिरा खून लगने से होता है, तो अब तकरीबन सारे अस्पतालों में खून टेस्ट किया जाता है किसी मरीज को लगाने से पहले, तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। उससे अल्हम्दुलिल्लाह केसेस बहुत कम हो गए और बहुत अच्छी स्क्रीनिंग होती है। और हर अस्पताल में ये उसूल है कि ब्लड लगाने से पहले स्क्रीन किया जाए। फिर भी कोशिश करें, अगर आपको खून की ज़रूरत नहीं है, हमारे माशरे में बहुत लोगों को शौक भी होता है कि जी खून लगवा लिया जाए, ताकत आ जाए। तो अगर खून लगाने की ज़रूरत नहीं है, खून की कमी है लेकिन इतनी नहीं है कि खून लगाया जाए, तो गैर ज़रूरी तौर पे खून लगाने से परहेज़ करें। मजबूरी हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया, खून बह गया, या इमरजेंसी ऑपरेशन हो गया उसमें खून बह गया, तो वो तो मजबूरी है ना, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे, शौकिया तौर पे खून ना लगवाएं। दूसरी चीज़ ये है कि गैर ज़रूरी तौर पे ड्रिपें भी ना लगवाएं, ख़ासतौर पे गाँव के इलाकों में वो नीडल्स रीयूज़ होते हैं, इंजेक्शंस रीयूज़ होते हैं, सिरिंजेस जो हैं। अब डिस्पोजेबल आ गए तो अब चीज़ें ये बहुत हद तक कम हो गई, लेकिन फिर भी गैर ज़रूरी तौर पे आप इंजेक्शंस का इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरी भी हो तो इंश्योर कर लें कि जो आपको इंजेक्शन लग रहा है सिरिंज से, वो सिरिंज नई सिरिंज है और ड्रिप जो है उसकी नीडल भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा दूसरों का इस्तेमाल शुदा रेजर्स ना यूज़ करें। जो ख़वातीन हैं, नाक कान में सुराख करवाने से पहले जो है ना वो नीडल
ایک یا تو بالکل نئی نیڈل ہو یا پھر جو ہے نا بالکل اسٹرلائز نیڈل ہو. نئی نیڈل ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اگر ہیپاٹائٹس بی ہے, بیوی کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو شوہر ویکسینیشن کروا لے. شوہر کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو بیوی اپنی ویکسینیشن کروا لیں. ہیپاٹائٹس سی الحمدللہ وہ اس راستے سے نہیں پھیلتا, بی پھیل سکتا ہے اور اس کی ویکسین بھی دستیاب ہے. سی کی ویکسین دستیاب نہیں ہے, بی کی ویکسین دستیاب ہے. شوہر کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو بیوی ویکسینیشن کروا لے, وہ اس سے بچاؤ ہو جائے گا. اور بیوی کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو شوہر اپنی ویکسینیشن کروا لے. تو اس طرح ازدواجی تعلقات میں ہیپاٹائٹس بی نہیں لگی. اور جو جنسی بے روی ہے اس سے دور رہیں, کیونکہ یہ سب سے کامن ریزن ہے مغرب میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے اور HIV کے لیے بھی. اس کے علاوہ شراب نوشی سے پرہیز کریں, ترک کر دیں اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ ہے مسئلہ. موٹاپا کم کریں, شوگر کو اچھا کنٹرول کریں. اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ کو ان میں سے کوئی بیماری نہیں ہے, مطلب اس کے علاوہ جو چند لوگ ہیں جن میں آئرن زیادہ ہو جاتا ہے جسم میں یا کاپر زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ یہ خیر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ڈاکٹر تشخیص کر کے پھر اس مطابق علاج کرتے ہیں. تو یہ چند کام تھے جس کے ذریعے آپ کالے ارکان سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں کمنٹس میں. اس کے علاوہ اس کالے ارکان کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو یا کسی اور ٹاپک پہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ لیں. اگر ادھر جواب دینا ممکن ہوا تو کمنٹس میں جواب دے دوں گا, ورنہ اس پہ تفصیل ضرورت ہوگی تو وہ پھر ویڈیو بنا دوں گا. تو چلیں, اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم.